Hello everyone, how are you all? Hello sir, I'm fine sir, and what about you? What about you? Hello sir, I am fine sir, and what about you? I'm also fine, thank you. Beta, in this session we are going to study English subject and English. We were studying the chapter number 5 or 6. Which chapter is this? Chapter number 5, na? The Pied Piper of Hamelin. Yes. In this chapter, already we have studied about the story. Already we have read the story and solved the exercises related based on this. Also, we have done the vocabulary junction, phonic junction, as well as the grammar junction. Writing junction and speaking and listening junction already has been done. Already have been done. Everybody have completed the exercises related to these exercises, na? These topics. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. In our last session, we had this session, the listening junction. In this section, we learnt about the question tag. Everybody remember? Did everybody remember or forget? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. So, is there any confusion? Any query related to the question tag? No, sir. Yes sir. Everybody is clear with the question tag, na? When we are going to use not or how Yes, we sir. have to use the pronoun. Everybody is clear with this concept, ना? अगर किसी को confusion हो तो पिछले क्लास के recorded video YouTube पे upload है उसको देख सकते हैं. Okay? Yes sir. Today we are going to talk about the present participle adjective. Present participle adjective. So before moving on the topic, before telling about it, I would like to confirm that कि how many have already aware with this topic? कितने लोगों को पहले से ही present participle adjective क्या होता है ये पता है? Do you know anyone what is present participle adjective? For how many students? Now tell me one thing. For how many students it is new? It is a new topic for them. Anchit, Anushka, Simran, everybody is going to learn it first. अबने बेटा अपना माइक प्लीज बंद रखें. यशवर्धन, संजना, संजीव, आप सभी के लिए भी नया होगा ना? Yes, sir. So बेटा you all need to listen very carefully. आप सभी को बहुत ध्यान से पढ़ाई करना होगा, बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा. This is also very important and very interesting topic. Down your hands, everybody. So, beta, in present for learning about the present participle adjective, first of all, we have to read this paragraph. Anchit Kumar, can you read this paragraph, please? Read this description on the Republic Day parade. I went to see the parade with my dad this Republic Day. We sat down amidst the cheering crowd of inspectors. The sound of the fluttering Spectators, T-A-T-O-R-S, taters है, spectators. and the blaring trumpets thrilled me. The fighter planes whoosed over our heads, leaving blazing trails of the tricolor every time the tableaus appeared. I would lean over the edge. I would lean, it's not slurred. Lean.
lean over the edge of my seat to catch a better glimpse glimpse of the thrilling colors of the flashing dresses of the performance. Okay, now stop. I went to see the parade with my dad this Republic Day. I went to see the parade with my dad this Republic Day. We sat down amidst the cheering crowd of spectators. The sounds of the fluttering flags and the blaring trumpets thrilled me. The fighter planes whoosed over our heads, leaving blazing trails of the tricolor. Every time the cavaliers appeared, I would lean over the edge of my seat to catch a better glimpse of whirling color of the flashing dresses of the performers. Now what you all need to observe here, you all need to look the words that is in bold format. बोल्ड समझते हैं क्या होता है? Yes, sir. जो गाढ़े कलर Yes, sir. जो गाढ़े कलर में लिखे Yes, sir. लाइक चियरिंग, ब्लेयरिंग, ब्लेजिंग, फ्लैशिंग, fluttering, these are in bold color. What you all need to observe here, they are all ing forms of the verb. They all are ing forms of the verb. ये सभी, अच्छा वर्ब कितने लोग समझते हैं? What do you mean by verb? वर्ब कितने लोग समझते हैं? ओके, बताएं वर्ब क्या होता है? क्या होता है वर्ब? All action words are called verb. जो वर्ब एक्शन वर्ड्स हैं दैट ऑल आर कॉल्ड अ वर्ब. ओके, जो भी आप ये बोल्ड कलर में देख रहे हैं, दे ऑल आर द आईएनजी फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब के. ओके, डाउन योर हैंड्स एवरीवन प्लीज. दे ऑल आर द आईएनजी फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. ये आपके एक्शन वर्ड्स के आईएनजी फॉर्म है. मान लीजिए EAT, ईट, ईट इज एन एक्शन वर्ड ना. ईट जो है वो आपका एक्शन वर्ड है कि नहीं? Yes, sir. जो ईट का आईएनजी क्या होगा? जो भी आपका वर्ब है उसमें आईएनजी लास्ट में ऐड कर दीजिए. व्हाट इज द आईएनजी फॉर्म ऑफ ईट? Eating. 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 In the same way, Eating. run is also in the same way. Run is also one of the action. And what is the ing form of run? Running. Running. Running is also one of the ing form of. In the same way, if you talk about the cheer, so cheering is also the ing form of cheer word. Yes, sir. cheer means क्या होता है? cheer आप करते हैं कभी आप गेम होता है कुछ. There are many students, अंचित कुमार, मुस्कान प्रजापति, बिमलेश, शिवांगी कनौजिया. These students have put their video on off. I think they are doing something else. पढ़ाई कर रहा हूँ कुछ और कर रहे हैं इसीलिए अपना वीडियो बंद कर लिए. अगर ऐसे ही करेंगे तो आप बेटा क्लास ही छोड़ दो ना, क्या दिक्कत है? Cheering is also one of the ing form of cheer word. और cheer आपका एक तरीके से एक्शन वर्ड है. cheer करना यानी जय जय जयकारा लगाना, यानी किसी को एक तरीके से whenever during the play आप किसी का समर्थन कर रहे हैं और किसी के समर्थन में आप आवाज निकाल रहे हैं, that is called cheering. We sat down amidst the cheering crowd. Crowd means क्या होता है? भीड़. क्राउड मीन्स भीड़. स्पेक्टेटर्स मीन्स क्या होता है? स्पेक्टेटर्स सर श्रोतागण. श्रोतागण नहीं होता, दर्शक होता है.
स्पेक्टेटर हमेशा देखने वाले होते हैं, ठीक है। श्रोतागण लिसनर होता है, लिसनर मीन्स होता है श्रोतागण, सुनने वाले, कहा जाता है ना श्रोतागण, सुनने वाले, दैट ऑल आर लिसनर। जब जो क्राउड, जब जो मैच देख रहे होते हैं, कहीं कोई भीड़ हो, कोई मैच हो रहा हो, तो जो वहां पे दर्शक, जो लोग देखने वाले होते हैं, उनको स्पेक्टेटर्स बोलते हैं। बट वही अगर टेलीविजन कोई देख रहा है तो टेलीविजन को देखने वाले लोग क्या कहलाते हैं? व्यूअर्स कहलाते हैं, ठीक है। ये ऑडियंस, ऑडियंस है, व्यूअर्स, जो भी आप कहते हैं। स्पेक्टेटर में समझ में आया? देखने वाले। Yes, sir. The sounds Yes, of sir. the sounds of fluttering Yes, sir. flags. And now, fluttering flags. Fluttering is also one of the ing form of flutter. Flutter means क्या होता है? Flutter means किसी को पता है? पत्र। पत्र नहीं, फहराना। The sounds of fluttering flags. फहराते हुए झंडे, fluttering flags means फहराता हुआ झंडा। झंडा। इसी तरीके से चीयर मीन्स आपको बताया, किसी के समर्थन में आवाजें निकालना। तो चीयरिंग, फ्लटरिंग, ब्लेयरिंग, ब्लेजिंग। ब्लेजिंग मीन्स क्या होता है? कैन एनीबडी टेल? ब्लेजिंग मीन्स किसी को नहीं पता? शिवांगी, अनुष्का? ब्लेजिंग ट्रेल्स ऑफ द ट्राइकलर। इसका मतलब समझते हैं क्या है? द फाइटर प्लेन्स whoosed ओवर आवर हेड्स। जब फाइटर प्लेन्स हमारे सर के ऊपर से जब उड़ रहे थे, लीविंग ब्लेजिंग ट्रेल्स ऑफ द ट्राइकलर। जब कभी आप लोगों ने देखा है फाइटर प्लेन जब उड़ते हैं तो पीछे एक धुआं, तो धुआं क्या है? ट्रेल्स, एक तरीके से धधकती राह, धधकती है, धुआं ही धधकेगा ना। ब्लेजिंग मीन्स धधकना, ब्लेज मीन्स धधकना, ब्लेजिंग मीन्स धधकती हुई राह, धधकती हुई एक तरीके से पूंछ, एक तरीके से वो पूंछ क्या है? एक रास्ता सा बन जाता है ऑफ द ट्राइकलर, तिरंगे वाला। Yes, sir. जब कभी आपके यहाँ परेड होता है, आपको टीवी पे देखते हैं आप लोग, तो क्या देखते हैं? वो डिफरेंट कलर्स के बिल्कुल रास्ते बनते हुए चले जाते हैं, उसके जो धुआं निकलता है दैट आर इन द डिफरेंट कलर ना, तो दैट इज अ ब्लेजिंग। Yes, sir. Yes, sir. कहने का मतलब ये है कि ब्लेजिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द आईएनजी फॉर्म ऑफ द एक्शन वर्ड या वर्ब ब्लेज। ब्लेज का ही आईएनजी फॉर्म है, यानी किसी भी वर्ब में अगर आईएनजी ऐड कर देते लास्ट में, दैट विल बी, अगर किसी भी वर्ब में मतलब वर्ब का जो बेसिक फॉर्म है, जो आपका मेन आपका वर्ड है, जैसे ईट का ईट है, रीड, ईट, रीड, स्पीक, दीज ऑल आर एक्शन वर्ड। जो आपका एक्शन वर्ड है लास्ट में अगर आईएनजी आप ऐड कर देते हैं, दैट विल बिकम एन प्रेजेंट पार्टिसिपल। तब वो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। आप लोग को लर्न भी कराया गया होगा, गो, वेंट, गॉन एंड गोइंग, तो बताया गया होगा go is a word and gone is a past participle। past participle आपके went and gone दोनों है, but third form of the verb is a gone। रिटर्न का past participle returned होगा। अंचित कहीं और आप देख रहे हैं, आप कुछ और आपके मन में चल रहा है, ध्यान नहीं दे रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल दो चीजें हैं, दो अलग अलग चीजें होती हैं। पास्ट पार्टिसिपल आपको अगले चैप्टर में जब ग्रामर स्टेशन होगा, चैप्टर नंबर 6 का ग्रामर स्टेशन में पास्ट पार्टिसिपल पढ़ाया गया है। तो वी वुड बी डिस्कसिंग मोर अबाउट द पास्ट पार्टिसिपल इन द नेक्स्ट चैप्टर। बट अभी जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल को समझिए। किसी भी आपके वर्ब में अगर लास्ट में आईएनजी ऐड कर देते हैं तो दैट विल बी
प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम है किसी भी कार्य को की कंटिन्यूटी दिखाना, किसी भी कार्य, वट एवर द वर्क इज देयर, लेट्स से कि अगर ईट है, ईट आपका एक्शन वर्ड है तो उसका कंटिन्यूटी दिखाता है कि ईटिंग यानी वो खा रहा है या खा रहा था या खा रहा होगा, यानी कहने का मतलब है जो एक्शन है वो लगातार जारी है, जारी था या जारी है, वो टेंस बाद की बातें हैं, किस समय की बात कर रहे हैं, दैट इज द डिफरेंट थिंग्स। बट जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये शो करता है, द प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ड्स आर शोइंग द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन। समझ में आया? Yes, sir. जैसे कि Yes, sir. आई एम रीडिंग, मैंने यहाँ पे अगर 2 सेंटेंस लिखा, पहला लिखा आई एम रीडिंग, दूसरा लिखा आई वॉज रीडिंग, आई विल बी रीडिंग। There are 3 sentences already I've written. जो ये रीडिंग वर्ड्स है ये मुझे ये नहीं दिखाता कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है या पास्ट की बात हो रही है या फ्यूचर की बात हो रही है, या ये दिखाता है रीडिंग, पहली बात तो रीडिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है या नहीं। रीड आपका प्रेजेंट नहीं, आप कह सकते हैं पार्टिसिपल है नहीं, प्रेजेंट रीड तो है आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म है, तो वर्ब जो भी आपका एक्शन वर्ड है उसका आईएनजी फॉर्म है या नहीं। Yes, sir. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Is it the ing form of the read word or not? शिखर वर्मा सो रहे हैं, अभिनय पांडे सो रहे हैं, what I'm asking they are not able to understand, they are trying to learn English language, even Anushka Yadav, Shivangi Tripathi, none of the students are telling, none of the students are responding. But I am asking that, is it the ing form of the read action word? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन क्या ये रीडिंग आपका पहले लाइन में भी है, दूसरे लाइन में भी है, तीसरे लाइन में भी है, लेकिन आप ये प्रेजेंट टेंस का, ये पास्ट टेंस का, ये फ्यूचर टेंस का है, लेकिन ये रीडिंग तो तीनों में है, तो यानी रीडिंग से हम प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है ये नहीं डिसाइड करते। रीडिंग तो सिर्फ ये दिखा रहा है कि जो रीड एक्शन है, रीडिंग का जो एक्शन है ये कंटिन्यूसली चल रहा है, जारी है। और यही वर्ब, जब जो एक्शन जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यही एक्शन वर्ड्स, यही प्रेजेंट पार्टिसिपल कई बार हम एज एन एडजेक्टिव भी यूज करते हैं, जैसे कि चीयरिंग क्राउड। चीयरिंग इज तरीके से एक्शन है, एक्शन आपका कंटिन्यूसली दिखा रहा है, बट व्हेनेवर इट इज बट इन द पैराग्राफ यहाँ पे आपको चीयरिंग जो है वो एक्शन नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे रीडिंग जो है, ये रीडिंग आपका एक्शन है, वर्ब है, एक्शन शो कर रहा है कि यहाँ पे रीडिंग इज ए एक्शन वर्ड, आपका ये वर्ब है। बट यहाँ पे जो चीयरिंग है, अगर यहाँ पे होगा आई एम चीयरिंग अगर लिखा होता, लेट्स से कि अगर ये आई एम चीयरिंग लिखा होता, CHEERING चीयरिंग, तो आई एम चीयरिंग क्या है, ये चीयरिंग क्या है, कोई काम है या विशेषता है, क्वालिटी बता रहा है। Sir, action. एक्शन Action is word. Sir, action word है. चीयरिंग इज एक्शन वर्ड, चीयरिंग इज वर्ब, चीयरिंग जो है वर्ब का काम कर रहा है। बट हियर आपके जो बुक में है चीयरिंग क्राउड, ये चीयरिंग आपका एक्शन नहीं है, ये क्राउड के बारे में बता रहा है, क्राउड के बारे में बता रहा है कि ये जो क्राउड है चीयरिंग करने वाले क्राउड। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Whenever a present participle, whenever a present participle word work as an adjective for a noun, जब भी कभी प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करे, जैसे कि यहाँ पे चीयरिंग कर रहा है क्राउड के लिए, फ्लैग के लिए फ्लटरिंग कर रहा है,
टेल्स के लिए ब्लेजिंग कर रहा है, ड्रेसेस के लिए फ्लैशिंग कर रहा है। These words are called a present participle adjectives. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव क्या होगा? कोई बताएगा? बताइए। प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव क्या है? शुभांगी, शिवांगी। शिखर वर्मा क्या है? बताइए आप। शिखर वर्मा माइक ऑन करिए, माइक ऑन करिए तुरंत, बताइए। व्हाट आर प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव? Sir, is called verb. क्या कहलाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव क्या है? Sir, इसका सर क्वेश्चन दोबारा बोलिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव क्या होते हैं? व्हाट आर प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव? कथा सुन लिए, कुछ पता नहीं चला? कौन बता सकता है? हाउ, हु कैन टेल? यशवर्धन सिंह बताइए। Participle from the verbs can be used and are adjective. They are known as present participle adjective. अंचित कुमार, व्हाट आर प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव? Present participle forms of verbs can also be used as adjective. They are known as present participle adjective. So I can tell. यस। The present participle form of these verbs, where they have been used as adjective. Here, present participle form of verb can also be used as adjective. बेटा आप किताब पढ़ रहे हो, आपको समझ में नहीं आया, मुझे हिंदी में समझाइए। इंग्लिश जो है वो मुझे हिंदी में समझाइए। हिंदी में कौन मुझे समझा सकता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव क्या है? क्या है? अनुष्का यादव आप बताइए। Sir, an adjective is an adjective that describe about noun in ing form. जी नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है। प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, एडजेक्टिव अलग चीज है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव अलग है। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषता, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव मतलब जो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है पहले वो पता होना चाहिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल, जब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो एडजेक्टिव का काम करे, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करे तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहलाता है। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, कौन बताएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है बताइए, संजना बताइए। Used plus ing as the adjective in the sentence, it is called a present participle adjective. जब किसी वर्ब के जो भी एक्शन वर्ड है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। ध्यान से दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा हमेशा। मैं पूछूं क्या ये जो वेंट है क्या ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है? इज इट प्रेजेंट No, sir. पार्टिसिपल? यस या नो? No, no, sir. No, sir. No, sir. और ये यूज्ड? No, sir. No, sir. No, sir. और ये डूइंग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डूइंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है बेटा, बिल्कुल सही। लेकिन ये डूइंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, डू में आईएनजी जुड़ा है, यानी आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। लेकिन ये प्रेजेंट पार्टिसिपल तो है, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव नहीं है। समझ में आया? Yes, sir. अब प्रेजेंट पार्टिसिपल Yes, sir. Yes, sir. जब Yes, sir. अगर यही डूइंग किसी नाउन के लिए विशेषता का काम करता,
किसी नाउन की क्वालिटी बताता या क्वालिफाई करता, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहलाता है। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल जब किसी नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करे, या प्रेजेंट पार्टिसिपल जब किसी नाउन की क्वालिटी या उसको क्वालिफाई करे, तो दैट आर कॉल्ड द प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्या होता है? सभी को क्लियर है? समझ में आ गया है सभी को? Yes. Yes, sir. अब प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव क्या है ये भी समझ में आ गया है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. बरका अपना फोन घुमा करके एक जगह बैठ के Yes, पढ़ाई। sir. बरका, आप जो टहल रही हो, दिस इज नॉट द प्रॉपर वे ऑफ लर्निंग। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जस्ट रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ फ्रॉम योर बुक। आपने जो भी वर्ड्स बोल्ड कलर में थे उसको आपने देखे। दे ऑल आर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। वे सभी वर्ब के आईएनजी फॉर्म्स हैं। चीयर, फ्लटर, ब्लेयर, ब्लेज, वेल, इन सबके वो आईएनजी फॉर्म थे जो अभी आपने यहाँ पे बोल्ड कलर में देखे, है कि नहीं? एंड फ्लैश। Yes, sir. Yes. प्रेजेंट Yes, पार्टिसिपल sir. फॉर्म्स ऑफ दीज वर्ब्स, ये इन सारे वर्ब्स के प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, यानी आईएनजी फॉर्म है। दे हैव बीन यूज्ड एज एडजेक्टिव हियर। ये सारे यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज किए गए हैं। ब्लेजिंग, ट्रेल्स के लिए यूज किया गया है। ब्लेयरिंग, ट्रैम्प्स के बारे में बता रहा है। फ्लैशिंग, ड्रेसेस के बारे में बता रहा है। दैट मीन्स कि दीज प्रेजेंट पार्टिसिपल हैज बीन यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इन दिस पैराग्राफ। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, जब किसी वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कैन ऑल्सो यूज एन एडजेक्टिव। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल, किसी भी वर्ब का जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो सिर्फ कंटिन्यूटी ही दिखाने के लिए नहीं यूज किया जाता, इवन वो कई बार एज एन एडजेक्टिव भी यूज किया जाता है। संजना पासवान, अगर किसी से बात कर चुकी हैं तो बताइए, बातें हो रही हैं आप? चलिए आप यहां से भागिए, बताऊं। No, sir. नो नो, अभी यहां से दिखाई नहीं पड़ा क्या मुझे? Sir, book में देख रहे थे. प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एडजेक्टिव। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होता है, जो वर्ब के जो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होता है, वो सिर्फ कंटिन्यूटी दिखाने के लिए नहीं यूज किए जाते, इवन ऑल्सो दे कैन यूज एज एन एडजेक्टिव फॉर, वो एज एन एडजेक्टिव भी यूज किए जाते हैं। और यही जब प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज हो तो दे आर नोन एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes. आप लोग Yes, sir. प्रेजेंट पार्टिसिपल Yes, sir. किसी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी किसी भी वर्ब में अगर आईएनजी जोड़ दो, किसी भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। दूसरा, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव क्या है? जब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है एडजेक्टिव का काम करे, जब कोई भी प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ड एडजेक्टिव का काम करे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहलाता है। ओके, नाउ दीज एडजेक्टिव डिस्क्राइब हाउ समथिंग इज और व्हाट इट इज डूइंग। ये जो एडजेक्टिव होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, ये डिस्क्राइब करते हैं कि कोई भी चीज कैसी है, कोई भी चीज कैसी है, या व्हाट इट इज डूइंग, या वो क्या कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज ए लॉन्ग बोरिंग फ्लाइट। इट वॉज ए लॉन्ग बोरिंग फ्लाइट, ये बहुत ही लंबी बोरिंग फ्लाइट थी। अब ऐसा, यानी जब भी वो ट्रेवल, जो भी जिस भी पर्सन ने ये बोला, whenever he travel by flight, वो बहुत ही बोर हुआ होगा, तो उसने क्या बोला? इट वॉज ए लॉन्ग बोरिंग फ्लाइट, बहुत ही बोर करने वाली उड़ान थी। आर यूज टू टॉक, अब ये दीज एडजेक्टिव जो प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होते हैं, दैट आर यूज टू टॉक अबाउट द पर्सन, वो किसी भी पर्सन के बारे में बताने के लिए यूज किए जाते हैं, किसी भी थिंग्स के बारे में बताने के लिए, या किसी भी सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए यूज किए जाते हैं, या कोई पर्टिकुलर फीलिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बोरिंग हो गया, फ्लाइट हो गया। बोरिंग फ्लाइट आपका क्या हुआ? बोरिंग तरीके से फीलिंग ही हुआ। द बर्स्टिंग क्रैकर फ्राइटेंड द डॉग्स। योर बर्स्टिंग क्रैकर्स, the bursting has been used as an adjective. Generally come before the noun. ये present participle adjective जो होता है
वो सामान्यतः नाउन के पहले आता है। यानी जैसे कि यहाँ पे बर्निंग जो है, बर्निंग इज ए, बर्न तो आपका एक्शन हुआ, बट आईएनजी फॉर्म बर्न का क्या, बर्निंग, तो दैट मीन्स कि इट इज अ, बर्न का प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये बर्निंग ना, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है लेकिन बिल्डिंग के लिए यूज किया गया है, यानी ये वर्ब नहीं रह गया, अब ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तब जब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है बिल्डिंग के लिए, तो ये आपका क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. अभी क्वेश्चन पूछूंगा, नाम ले लेकर के ध्यान रखिएगा। कैन बी लिंक टू द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस विद अ हेल्पिंग वर्ब। कैन बी लिंक्ड टू द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस विद अ हेल्पिंग वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, ग्रामर इज इंटरेस्टिंग। जो आपका इंटरेस्टिंग वर्ड है बेटा, ग्रामर इज इंटरेस्टिंग एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें इंटरेस्टिंग क्या, कोई एक्शन है, ये क्या, ये एक्शन हो, यहाँ पे इस सेंटेंस में कोई एक काम हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है। क्यों? शिखर, अभिनय, अनुष्का, संजना। Yes, sir. Yes, sir. बट इंटरेस्ट Yes, जो है sir. वो एक्शन वर्ड है। इंटरेस्ट जो है वो एक्शन वर्ड है। इंटरेस्ट इज एन एक्शन वर्ड, और इंटरेस्ट का में जब आईएनजी ऐड हुआ तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन ये वर्ब है नहीं, वर्ब नहीं है। एक्शन यहाँ पे एक्टिंग नहीं कर रहा है, एक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा है, इट्स नॉट अ वर्ब। ये क्या है, ये ग्रामर को क्वालिफाई कर रहा है, यानी ग्रामर एक नाउन है, नाउन के बारे में बता रहा है। दैट मीन्स कि इंटरेस्टिंग क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब है या प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, क्या है? The present participle adjective. The present participle adjective. The present participle adjective. समझ में आ गया? How many have understood the present participle adjective? Raise your hand, because now the time is for asking question. अब क्वेश्चन पूछे जाने हैं आप लोगों से। सभी को समझ में आ गया ना? चलिए ठीक है, पूछते हैं। Yes. Identify and underline the present participle adjective in these sentence. आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। शिखर वर्मा, डाउन योर हैंड्स एवरीबडी। आइडेंटिफाई करना है एंड अंडरलाइन करना है। पहले आपको पहचानना है, फिर उसके बाद अंडरलाइन करना है। किसको? प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव इन दीस। Present participle adjective. बेटा कोई भी आईएनजी फॉर्म ऐसा ना हो, वर्ब का अगर आईएनजी फॉर्म है तो कोई जरूरी नहीं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव ही हो, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब भी हो सकता है। एडजेक्टिव कब होगा? कब होगा एडजेक्टिव? जब वो किसी नाउन की विशेषता बता रहा हो, किसी नाउन की क्वालिटी बता रहा हो, या नाउन को क्वालिफाई कर रहा हो। तो इसको जरूर ध्यान देना, तभी आंसर देना। ऐसा नहीं कि तुरंत जो आईएनजी देखो तुरंत बोल दो, ऐसा नहीं है। फर्स्ट सेंटेंस, अभिनय पांडे, रीड द फर्स्ट सेंटेंस। In the circus, we see a dancing elephant. ये सा है, सी सा, सी मीन्स देखना, सा मीन्स देखा। इन द सर्कस बी डांसिंग एलिफेंट, इसमें कौन सा प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है? अभिनय। The dancing present particle adjective है। डांसिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, वेरी गुड। ये किसकी क्वालिटी बता रहा है, किस नाउन के बारे में बता रहा है? सर एलिफेंट के बारे में, सर जानवर के बारे में। एलिफेंट के बारे में बता रहा है, वेरी गुड। शिखर वर्मा, अनम्यूट योरसेल्फ। He looked at the sleeping faces of his children. Which one is the present participle adjective? Sir, present participle verb. Present participle. कहना ही नहीं आ रहा है अभी। पार्टिसिपल, PARTI, पार्टी बोलते हो, सिपिल बोल दो उसी में। पार्टिसिपल
चलिए मुझे प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव कौन सा है इसमें? सर सर स्लीपिंग स्लीपिंग किस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है? सर चिल्ड्रन चिल्ड्रन के बारे में बता रहा है, स्लीपिंग चिल्ड्रन बता रहा है या फेस के बारे में बता रहा है? सर ऐसे ही पढ़ेंगे बेटा। इसी तरीके से आप सभी लोग ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये सारे सेंटेंसेस को पढ़ना है, आपको जरूर ध्यान देना है। अच्छा नाउ राजपाल आप जरा बताइए बेटा, रीड द थर्ड सेंटेंस। I am reading an intelligent book. बेटा ये क्या लिखा है? संजना पासवान, राजपाल नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप जरा उनको बताइए क्या लिखा है ये। I am reading an interesting book. आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक। राजपाल जरा बताइए इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव कौन सा है? The reading. सिमरन भारती आप बताइए। Sir, reading and interesting. संजना पासवान आप बताइए। सर इंटरेस्टिंग अभिनय पांडे आप बताइए। Sir, reading and interesting. शिखर वर्मा आप बताइए। सर बुक बुक आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है भैया, क्या कर रहे हो तुम? आईएनजी फॉर्म है क्या? तुमने अभी तक सुना? यही पढ़ाई किए हो? प्रेजेंट पार्टिसिपल अभी नहीं पहचानना आ गया? पूरी कहानी खत्म हो गई। आज की रिकॉर्डिंग सुनना, नहीं तो तुम्हें नहीं पढ़ना उड़ना आएगा। शिवान्या चौधरी बताइए बेटा। Reading and interesting. शिवांगी त्रिपाठी, यशवर्धन, सभी लोग बताइए। अनुष्का यादव। Sir, reading and interesting. Reading and interesting. आप बताइए। Sir, interesting. कई सारे बच्चे गलत हैं। शिवांगी त्रिपाठी, अनुष्का यादव, शिवान्या चौधरी सब लोग गलत हैं। केवल अंचित और संजना सही हैं, बाकी सब गलत हैं। रीडिंग आपका ये प्रेजेंट पार्टिसिपल तो है, बट प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव थोड़ो है। एडजेक्टिव तो तब होगा जब ये किसी नाउन की क्वालिटी को बता रहा हो। ये तो एक्शन का काम, यहाँ पे तो एक्शन शो कर रहा है। आई एम रीडिंग, यहाँ पे ये बताया जा रहा है, इससे एक्शन इससे शो हो रहा है कि कौन सा एक्शन हो रहा है। तो रीडिंग इज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब। और ये इंटरेस्टिंग जो है ये बुक के बारे में बता रहा है। इंटरेस्टिंग बुक, ये बोरिंग बुक है या इंटरेस्टिंग बुक है? तो इंटरेस्टिंग इज ओनली द प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। जब ये जो इंटरेस्टिंग वर्ड है ये बुक की विशेषता बता रहा है, तो प्रेजेंट इंटरेस्टिंग इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, नॉट रीडिंग। समझ में आया? Yes, sir. Yes. यस सर तो आप लोग को ये डी और ई में भी जो भी अब आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है उसको आप अंडरलाइन करिएगा पहचान की। क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट करना है, 3 को भी कंप्लीट करना है, 4 को भी कंप्लीट करना है। करिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको समझा दूंगा। समझ में आया? यस सर Yes. आप लोग इसको कंप्लीट करके आज अभी कंप्लीट करके तुरंत भेज दीजिए। अगर आप लोग कर ले जाएंगे तब तो ठीक है, मैं अगले क्लास में आपको नया चैप्टर शुरू कर दूंगा। अगर आप लोग नहीं कर पाएंगे तो अगले क्लास में मैं सबसे पहले आपके इस एक्सरसाइज को डिस्कस करूंगा। सो अभी आज आपका समय खत्म हो चुका है। यस सर So what you all need to do, you all need to complete the exercise. आप लोग इस एक्सरसाइज Yes, sir. इन चारों एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करके, इन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करके अभी तुरंत फोटो भेजिए ग्रुप में। Yes, sir. Yes. दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। सर हमें समझ में आ गया यस शिखर, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? सर हमें समझ में आ गया चलो समझ में आ गया। चलो एक्सरसाइज सॉल्व करके भेजिए, तब पता चलेगा मुझे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय एवरीवन। Sir,